Hello students and students, how are you? I hope you all are fine. And students, before reading the third comprehension of the chapters the tsunami, we are discussing we will discuss about the comprehension. Okay, so we have completed our two comprehension of this chapter. Okay student, so first we check the question answer of this comprehension number second. Okay student, first question, why did Tilly's family come to the Thailand? So students, some students have done it but some did not do. So I think कि मुझे आंसर बता देना चाहिए. Okay students, so first question, why did Tilly family come to the Thailand? So Tilly's family came to Thailand from the southeast England to celebrating Christmas. Okay, this is the answer of the first question. And now the time for second question, what were the warning sign that both Tilly and her mother saw? Both Tilly and her mother saw the sea slowly rise and start to form bubble and whirlpools. That were the warning sign which they noticed. Okay? And third question, do you think Tilly's mother was alarmed by them? So student, question number third का आंसर है no. I think Tilly's mother was not alarmed by them because when Tilly started to scream at her family to go to get off the beach, her mother Penny said, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, she thought something serious must be going on. This is the answer of the third question. And now the next fourth question, student, fourth question, where had Tilly seen a sea behaving in the same strange fashion? So answer number fourth question, student, Tilly had seen the sea behaving in the same stranger fashion in the school classes video. Her geography teacher told her that it can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. Okay students, so this is the answer of question number 4th. And students, now question number 5, where did the Smith family and the other on the beach go to escape from the tsunami? So tsunami से बचने के लिए वो लोग कहाँ गए थे? So answer number 5th, students, the Smith family and the others on the beach went to the third floor of the hotel and were saved from tsunami. ठीक है, कहाँ गए थे? जैसे चैप्टर में पढ़ चुके इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं. इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? So her geography teacher felt pleased and satisfied when she heard about what Tilly had done in Phuket. So we have completed all question answer of comprehension number 2nd, and now the time for starting we are going to start third comprehension of this chapter. Students, third comprehension, look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the thing that you see. Students, there is a picture, so look this picture. In this picture there is a boy, a dog, और उसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो उस समय के
बारे में बता रही हैं जब सुनामी आई थी कि कैसे सब कुछ तबाह हो गया था। ओके स्टूडेंट, सो लुक केयरफुली एट द पिक्चर। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, और उस बॉय को और उस कुत्ते को जो उसके साथ में है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और उन चीज़ों को आप बताइए, उन चीज़ों का वर्णन कीजिए जो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही हैं। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ शब्दों और फ्रेजेस का यूज़ करके। आइदर द टीचर और नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स। इसको या तो टीचर या स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अपने शब्दों के साथ और अपने फ्रेजेस के साथ ब्लैक बोर्ड पे या फिर नोटबुक पे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। यहाँ पे कुछ क्लूज़ दिए गए हैं जैसे आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काम, ब्लू सी, ruined hearts, like that. Okay, before the giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, before the giant waves slammed into the coast इन इंडिया, जो इंडिया और श्रीलंका की कोस्ट थी उनको जाइंट्स वेव्स ने क्या किया, स्लैम्ड मतलब ठोकर मारी, विशाल सुनामी वेव्स ने ठोकर मारी थी जो थाईलैंड से उठी हुई थी, और वो इंडिया और श्रीलंका को उनसे क्या हुआ, भारी नुकसान हुआ। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो वॉट वॉज अबाउट टू हैपन। जो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक, जो जानवर, जो पालतू जानवर थे और जंगली जानवर थे, उनको पहले से ही कुछ पता चल रहा था कि वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला था। दे फ्लैड टू सेफ्टी, इसलिए वो सेफ्टी रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, जो जिन्होंने आई विटनेस मीन्स होता है जिन्होंने आँखों से उस मंजर को देखा है, उस नज़ारे को देखा है, यानी कि जो उस समय के आई विटनेस थे, उनके अनुसार एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। एलिफेंट स्क्रीम्ड, हाथी चिल्ला रहे थे, एंड रैन फॉर द हायर ग्राउंड, और ऊंचे मैदानों की तरफ भाग रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर, और जो कुत्ते थे वो मना कर रहे थे बाहर जाने को, यानी कि वो बाहर नहीं जाना चाहते थे। एंड फ्लेमिंगोज अबंडेंट देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो राजहंस के जोड़े थे वो जो अपने ब्रीडिंग मतलब अपने अंडे देते थे, लो लेइंग मतलब निचली सतह पर पानी के पास, तो वो भी उन एरिया को नहीं जा रहे थे, उधर नहीं जा रहे थे, भाग रहे थे दूसरी तरफ। एंड द जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और जो जंगली जो आपके चिड़ियाघर के जो दूसरे जानवर थे वो भी वहाँ उसमें नहीं रहना चाह रहे थे, और वो वहाँ वापस मतलब उस एरिया से भागना चाह रहे थे। मैनी पीपल बिलीव, बहुत से लोगों का विश्वास है, दैट एनिमल्स पॉसेस अ सिक्स सेंस, कि जो जानवर होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और वो जान जाते हैं कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी कब हिल रही, धरती और पृथ्वी कब हिलती है या कैसे हिल रही है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ एक्सपर्ट्स का विश्वास है, दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, कि एनिमल्स के पास ऐसे हियरिंग हेल्प्स दैम टू हियर टू और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि उनके पास ऐसे सिक्स सेंस होते हैं जिससे वो क्या करते हैं कि पृथ्वी की कंपन को, वाइब्रेशंस को क्या करते हैं, महसूस कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर, और वो उनकी जो इस प्राकृतिक आपदाओं को, इस तरह के आपदाओं को पहले ही से ही जान लेते हैं। ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब इंसानों से पहले जानवरों को पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर, हम नहीं कह सकते हैं वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होते हैं अथवा नहीं। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन जो सही बात है वो यह है, दैट जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन killed more than 1,50,000 people in a dozen
कंट्रीज़ कि वो कह रहा है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होते हैं अथवा नहीं, पर जो सही है वो ये है कि विशाल सुनामी ने जो इंडियन ओशियन हिंद महासागर से उठी थी, उन सुनामी ने 1,50,000 लोगों को और दर्जनों देशों को इससे क्या कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, बट लेकिन इसमें बहुत सारे जानवरों को की मरने की कोई भी लिखित सूचना नहीं है कि बहुत ज़्यादा जानवर इसमें मर चुके थे। अलोंग इंडियाज कैडलॉर कोस्ट, इंडिया के कैडलॉर कोस्ट में वेयर थाउजेंड्स ऑफ द पीपल पेरिस्ड के कॉडलर कोस्ट में, जहाँ पर हजारों लोग प्रीस्ट मीन्स होता है मरना, कि मरे जाने का, बफेलोज मीन्स भैंसों का, गॉड का, एंड डॉग्स कुत्तों का, वर फाउंड अनहार्म्ड, कि ये लोग क्या हैं, इनसे उनको जो हजारों लोग तो मरे हुए हैं पर जो बफेलोज वगैरह गॉड्स हैं और डॉग्स हैं उनको उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। एंड द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में home to the variety of the animals including elephants, leopards and 130 species of the birds, कि वो बता रहा है कि जो श्रीलंका का यला नेशनल पार्क है वहाँ पर ऐसे बहुत सारे दूसरे जानवर हैं जिनमें एलिफेंट्स हैं, लिपर्ड्स हैं और इसके अलावा 130 और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 60 विजिटर वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क, और इस पार्क के अंदर एक पतंगला बीच था जहां पर 60 विजिटर जो वहां उस पार्क को देखने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे, वो इस सुनामी में बह गए थे। बट लेकिन नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, लेकिन वहाँ पर कारकेसेस मीन्स होता है डेड बॉडीज़, लेकिन किसी भी प्रकार के जानवर की वहाँ पर किसी भी तरह की डेड बॉडी नहीं मिली एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, कि वहाँ केवल 2 वाटर बफेलोज की बॉडी मिली थी। अबाउट एन आवर, लगभग एक घंटे पहले द सुनामी हिट, सुनामी ने यहाँ पर क्या किया था, हिट किया था। पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। पीपल जो याला नेशनल पार्क के लोग थे उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि केवल 3 हाथी थे जो वहाँ से भाग रहे थे। एंड फ्रॉम द पतंगला बीच, कहाँ से, पतंगला बीच से। श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंकन व्यक्ति ने हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द कोस्ट, जो कोस्ट के पास ही रहता था, गैले सेड, गैले कहते हैं, हिज 2 dogs would not go for their daily run, जैसे कि और दूसरे जानवर थे वो he said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, जो उसका उनके 2 कुत्ते थे वो रोज़ की तरह बाहर नहीं जा रहे थे ऑन द बीच, उस बीच में। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, जबकि वो सामान्यतः बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे बाहर जाने को। ही सेड, वह कहता है, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज़ टू गो, उन्होंने जाने को मना किया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह दिस कॉम्प्रीहेंसन क्या हो गया है, फिनिश्ड हो गया है। तो बच्चों आपको ये कॉम्प्रीहेंसन भी आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। इस तरह से ये आपको पिक्चर है, इस पिक्चर को आपको अपने ही वर्ड में कुछ इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। एक पैराग्राफ राइटिंग कीजिए आप, ये आपका होमवर्क है कि किस तरह वो उसके साथ क्या हुआ है। आप पिक्चर को देख कर के एक आइडिया लगा सकते हैं और एक स्टोरी आपको खुद से ही क्रिएट करनी है, लिखनी है। आपका बच्चों आज का जो होमवर्क है, ये होमवर्क ये है कि आपको जो कॉम्प्रीहेंसन 3rd कंप्लीट हुआ है, इस कॉम्प्रीहेंसन के आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको वर्ड मीनिंग की फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। सो वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए
थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।